Assalamu alaikum and very good morning to all of you. I am Miss Naira Tanveer from Multan Public School and College. This video is created for the class 5 and we are here in the week 5. In previous week we start our chapter number 5, the ratio, and we did the one lesson in that week. Now we are going to start the lesson number 2 or topic number 2, equivalent ratio. Now here we have a different types of equivalent ratio questions. I just want to start from the introduction given on your book 5. The ratio of the number of stock to the tuples to the number of stocks to the rows, that is 3:6. Now we have 3 ratios tuple and 6 ratios. 6 are from roses. So count the number of flowers in a bouquet. Did the number of tuples and roses are changed? No, they are not changed, but they are now in a smaller quantity. We have 3 of tuple, but in a bouquet we have a 1 bouquet. We have a 6 of roses, but in bouquet we have 2 bouquet. So कैसे हमने इनके पेयर्स बनाए? 3 के पेयर्स बनाए, क्योंकि जो स्मॉलर क्वांटिटी है वो भी हमें बता रही है कि अगर हम 3 को 1 बना देते हैं तो नाउ वी हैव अ 6 हियर. तो 6 में भी 3 for 1 and the other 3 is for the second one. Now some questions. Now I am here on a book 5, page number 109. Raju bought some fruits as shown in the figure. Apples are 4, mangoes are 8, oranges are, how many oranges here? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 6 is 12. Yes. So the ratio of the number of apples to the number of mangoes to the number of oranges. So first is apple 4, second is mango 8, 12 is orange 12. Third one is orange, that is 12. He packed the fruit into bags of 2. मतलब अब हर बैग के अंदर 2 हर आइटम आएंगे. तो अगर फॉर एग्जांपल वी हैव अ 4, अगर हम इसके पेयर्स बनाएं तो 2 के पेयर्स बनेंगे. क्या अगर मेरे पास यहाँ पे कलर्स शो कर सकूँ मैं तो दैट इज इजी. Sorry. First of 2 are in the one bag and the second of 2 in the second bag or the other one, right? So bags of apple, how many bags of apples we got? 2, right? Now mangoes, first 2, second 2, third and fourth. How many bags for the mangoes? 4, right? And now what about the oranges? 6 bags. The ratio of the number of bags of apple to the number of bags of mango to the number of bags of oranges, that is 2, that is 4, that is 6. अब वो कहता है he changed his mind and decide to pack the fruit into bags of 4. अब वो 4 का एक पेयर बनाना चाह रहा है. तो एप्पल के कितने बन जाएंगे? 1 बैग. मैंगो के फर्स्ट 4 एंड द सेकंड 4. हाउ मेनी बैग्स? 2 बैग्स. Oranges के 4, first 4, second 4 and third 4. So how many? 1, 2 and 3. The ratio will be 1:2:3. Now first ones 4:8:12, और जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया मीन्स हमने फर्स्ट में इसको 2 पे डिवाइड किया तो बैक ऑफ 2 बने थे ना. और फिर उसके बाद जो आंसर हमारे पास आया उसने कहा कि नहीं, अब मैं फर्स्ट वाले को दोबारा बैक ऑफ 4 बनाता हूँ. तो मैंने उसको 4 पे डिवाइड किया. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. दिस इज द रेशो. एंड 4:8:12 एंड 2:4:6 जो हमारा सेकेंड वन आंसर था, एंड 1:2:3 जो हमारा थर्ड का आंसर था, आर द इक्विवेलेंट रेशियोज. तो ये हमने डिवाइड करके इक्विवेलेंट रेशियोज निकाली. अब आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें मल्टीप्लाई करके भी कुछ काम करना होगा. नाउ वी हैव हियर दिस वन. नाउ ऑन अ बुक 5, पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग नंबर. मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
अब हमें यहाँ पे हम उसने क्वेश्चन दिया 3:7 इज इक्वल टू 6 दिस 6 इज omitted. अगर आप बुक पे देखें तो द क्वेश्चन इज 3:7 इज इक्वल टू डैश रेशियो 14. नाउ हमें कहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा? फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट do this question on the last page. Now we have a 3, some other question. 2:3 is equals to dash ratio 12. Okay, now what we have to find out? We have to find out the missing value. यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? सो हमने देखा, क्योंकि हमें पता है कि 2:3 इज इक्वलेंट टू डैश रेशियो 12. अब हमारे पास एक वैल्यू सॉल्व्ड है, ठीक है. अब मैं उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ 3 और यहाँ हमारे पास 12, ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो हमारे पास सॉर्टेड हैं या मेंशन है, ठीक है. इसको मैंने हाईलाइट करने के बाद 12 कर दिया ताकि मुझे आसानी हो जाए. नाउ 3 and 12 आर गिवन. नाउ 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, या हम 12 को किस नंबर पे डिवाइड करें, देन वी गॉट द 3. आप दोनों मेथड में से कोई भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ योर रफ वर्क. ये क्वेश्चन बुक में नहीं है. आई एम जस्ट giving you one example about how to solve the missing numbers. So 3 4s are 12. That's mean we have 4, right? अब हमें जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी 2, ये वाली, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से. Yes, very good. I know you guys are very intelligent. 2 4s are 8. So अगर मैं ये ब्लैंक को फिनिश कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. So it will be 8, right? अब आप इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. अगर मैं इसको कहूँ आप इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू 2:3. दिस इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 8:12, राइट. और इक्विवेलेंट रेशियो में अगर हमने देखना है तो 2:3 इज इक्विवेलेंट टू 8:12. बोथ आर सेम. आप किसी भी तरह से उसको याद कर सकते हो. So now again the page 110, question number 3 is already discussed in the with the example. Now if we have a bigger ratio values like 6:12:24, now this is the big value and 1 is given, here is 2 is given. Now we have to find out the values in the blank. So we have to check, or we have to calculate by the division method. So in the table of 2 we got 3. 2 3s are 6, right? और 6 के टेबल को अगर हम किस नंबर से किस तरह से डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर 2 आ जाए, तो इट्स मीन कि हमें उस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा. सो अगेन 4 को भी 3 से डिवाइड 12 को भी 3 से डिवाइड करेंगे देन वी हैव अ 4, एंड 24 को भी 3 से डिवाइड करेंगे देन वी हैव 8. अब यहाँ उसने डिवीजन मेथड को भी आपकी थॉट्स के जरिए समझाया है. नाउ हियर पेज नंबर 111 means 111. Again some questions. Now I just want to describe about the question number 5. Zinni wants to use a ratio in its simplest form to compare the height of her mini whiteboard to the height of the whiteboard in the class. In a mini whiteboard, the height is 20 centimeter, but in a class whiteboard is 1 meter. First we have to change meters into centimeter. Again, अगर हमें bigger value as the meter is bigger than the centimeter, अगर हमें bigger value से smaller value में आना होता है then we have to multiply.
ठीक है। 1 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे देन इट विल बी 100, और फिर उसने उसको सिंप्लीफाई किया, सेम टेबल पे दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया। आप इसको पहले 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, फिर 5 से भी कर सकते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट लगे, जिसका टेबल आप लोगों को आसान लगे। नाउ अगेन पेज नंबर 112 we have some other questions and like जैसे question number 2 आपके सामने है, the capacities of some containers are given, right? Now you have to follow read the statement and then write down the answer. वर्ड प्रॉब्लम्स या वर्ड में लिखी हुई स्टेटमेंट्स को आसान तभी आप कर सकते हो जब आप उसको रीड करें अगेन एंड अगेन. Express each of the following ratios in its simplest form. Now, bottle is 2000 milliliter, tank is 8 liter, and Paul is 5000 milliliter. सबसे पहले तो हम ये जो लीटर वाली वैल्यू है इसके आगे हम लिख लेते हैं कि दैट इज 8000 मिलीलीटर, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए. अब जिसकी रेशो पहले पूछी है उसको पहले मेंशन करेंगे, जिसकी बाद में पूछी है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है. द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक टू द कैपेसिटी ऑफ द पॉल. टैंक 8 और पॉल आपके पास 5, क्योंकि उसने यहाँ पे सबको लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया तो 8 लीटर और 5 लीटर्स, ठीक है. और अगर हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना चाहें किस किस की, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल टू द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है, दैट विल बी 2000 एंड मीन्स के 2 रेशो 8, तो उसको उसने 2 पे डिवाइड कर दिया, राइट. अगेन वी हैव द रेशो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल एंड द टैंक टू द टोटल कैपेसिटी ऑफ द 3 कंटेनर. बॉटल और टैंक की टोटल, बॉटल और टैंक की टोटल मीन्स कि कितनी होगी 10, एंड टैंक टू द टोटल कैपेसिटी ऑफ द 3 कंटेनर्स, और तीनों की इकट्ठी अगर हम करें तो कितनी होगी 15. सो इट विल बी 10 एंड 15. और जब उसको सॉल्व किया, जैसे आपको पता है कि 5 के टेबल में 5 2s are 10 and 5 3s are 15. So all of this from my side. This is the page for your worksheets of book 5A. Page number 104 and 105 is solved here. Jazakallah and thank you so much.